बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 9 chemical equilibrium and today our topic will be difference between forward and reverse reaction, macroscopic characteristic of dynamic equilibrium, test yourself 9.1 which is on your page number 6 of your textbook. Starting from the difference between forward and reverse reaction, we have studied earlier that there are two types of chemical reactions, reversible reactions and irreversible reactions. In case of reversible reactions, we have further two divisions. One is forward and the other one is reverse. तो अब हम उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम पिछले टॉपिक्स में स्टडी कर चुके हैं, we are going to sum up that. Forward reaction in which reactants react to form products. हमने पिछले एग्जाम्पल के साथ इसको एलैबोरेट किया that hydrogen and iodine both react together and they form hydrogen iodide. So these are the reactants. When they react together, they form product. We call this forward reaction, which takes place from left to right. It takes place from left to right at initial stage. जब अभी आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, the rate of forward reaction is very fast क्योंकि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा है. बट जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स वापस से डिकम्पोज होना शुरू होंगे और इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंचने तक आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स चूंकि अब प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम हो रही है, द स्पीड विल स्लोज डाउन ग्रेजुअली. तो इसके रिवर्स में क्या होगा? In reverse reaction, the products they react to form reactants or the product decompose to form reactants depending upon कितने reactants है. अगर एक ही कितने products हैं, अगर एक ही product है तो वो decompose होके reactant में change होगा. For example, the reaction between calcium oxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate. So in this case हमारे पास दो reactants हैं that react together और फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करते हुए कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करेंगे. बट इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन दिस कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज और ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी एक से ज्यादा है तो तब वो आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देंगे? अगेन रिएक्टेंट्स. So in reverse reaction, the products they react or they decompose to produce reactants. The reverse reaction it takes place from right क्योंकि right side पे हमारे products तैयार हुए हैं and it will change into the reactants which is on the left side. At the beginning चूंकि अभी products बहुत कम है इसलिए reverse reaction ना होने के बराबर है. It is almost negligible. Its speed is negligible, but it speeds up gradually. जैसे जैसे products की quantity बढ़ती जाएगी reverse reaction की speed भी आहिस्ता आहिस्ता increase होती जाएगी. This is an important short question. Mark it. Next we have macroscopic characteristic of dynamic equilibrium. So in this reaction we have ammonium chloride which is breaking into ammonia and HCl. So in this case we have only one reactant but two products and forward reaction will be ammonium chloride breaking into ammonia and HCl. But in case of reverse, HCl and ammonia will combine together and we will have ammonium chloride. तो डायरेक्शन हमेशा क्या है? फॉरवर्ड की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बैकवर्ड और रिवर्स की फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इनकी जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन है जब इनकी स्पीड बराबर हो जाएगी तो हम जो है वो कहेंगे कि इक्विलिब्रियम हो गया है. अब जैसे एट द बिगनिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. सो एट द बिगनिंग वी हैव फॉरवर्ड रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट अ वेरी फास्ट पेस. बट इन केस ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्पीड क्या है? एट स्टार्ट कम है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की स्पीड अप हो जाएगा और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड एक दूसरे के बराबर हो जाएगी और अब हम इसे क्या कहेंगे? दिस हैज अचीव्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. बट कीप इन माइंड दैट at dynamic equilibrium concentration of reactants and products it won't change anymore. We have achieved the equilibrium state. अब रिएक्शन हो रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन रुक गया है बट हकीकत में रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन हो रहा है.
So in case of reversible reaction, forward and backward speed matters. Keep in mind this. Second thing, concentration of reactants and products. It remains constant. It doesn't change. It doesn't mean that the both of their quantity is same. ये नहीं है इससे मुराद कि अमोनियम क्लोराइड की जितनी क्वांटिटी है, अगर फॉर एग्जांपल 5 ग्राम है एंड अमोनिया HCl इज इन गैस और इनकी क्वांटिटी सेम हो जाएगी, ऐसा नहीं है. बट their concentration, their molarity concentration will be same. For example, we have ammonium chloride. 1 mole of ammonium chloride is breaking to produce 1 mole of ammonia and 1 mole of HCl. अब ये क्या है, इनकी ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, इसमें गड़बड़ी नहीं आएगी. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम अमोनियम क्लोराइड अपनी तरफ से और ऐड कर देते हैं, अपनी तरफ से क्वांटिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड की एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो अब क्या होगा, 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड हुआ तो हमारा रिएक्शन जो है वो राइट की तरफ जाता हुआ अमोनिया और HCl बनाएगा. और अगर हम लोग इसको फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को हीट अप करते हैं, कंडीशंस चेंज करते रहते हैं, तो कंडीशंस चेंज होने पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी बदलती जाएगी. यानी अगर आप रिएक्शन को हीट अप करते हैं, अमोनियम क्लोराइड फॉरवर्ड की डायरेक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, एंड अगर आप उसको कूल डाउन करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी. लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. So it means equilibrium can be achieved only in closed system, जहां पर आपका कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट सिस्टम को जिस जगह पे आप रिएक्शन करवा रहे हैं उस एरिया को लीव नहीं कर रहा, उसको एस्केप नहीं कर रहा, तभी रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है. अदरवाइज अगर कोई एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपने सिस्टम में से रिमूव होता है तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा. इनमें से कोई ना कोई एक रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, या फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी या रिवर्स, और वो तब तक होती रहेगी जब तक कि इनकी वापस से वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता. Let me give an example for this. For example, we have ammonium chloride here, जिसमें अभी मैंने पहले भी मेंशन किया, we have 1 mole of ammonium chloride which is breaking to give 1 mole of ammonia, 1 mole of HCl. अब अगर हम 2 moles of ammonium chloride ऐड कर देते हैं तो अब क्या हुआ, हमारी जो कांस्टेंट रेशियो थी उसमें गड़बड़ी आ गई. अब क्या होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड अप हो जाएगा. अब वो 2 मोल्स दोबारा से फॉरवर्ड होने के बाद, स्पीड अप होने के बाद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया और 2 मोल्स ऑफ HCl तैयार करेंगे. इस तरह से क्या होगा, अब आपकी ये क्वांटिटी, ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक 2 मोल्स ऑफ अमोनिया और 2 मोल्स ऑफ HCl तैयार नहीं होते. और जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे फिर हमारा रिएक्शन अगेन डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच जाएगा. तो इसीलिए इसका मतलब हमारा यही हुआ दैट अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हमारी इन दोनों रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की एट इक्विलिब्रियम शुड बी कांस्टेंट, बट नॉट देयर वेट, नॉट देयर मास, नॉट देयर क्वांटिटी, क्योंकि 50% रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे नहीं होते. तो लेट्स स्टडी दिस. We have at equilibrium is achievable only in a closed system. अभी हमने बात की कि कोई भी हमारा सब्सटेंस, अदर वो प्रोडक्ट है, अदर वो रिएक्टेंट है, वो अगर सिस्टम को लीव कर जाएगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा. इक्विलिब्रियम होने के लिए सिस्टम का क्लोज होना, बंद होना जरूरी है. सेकेंड थिंग इज द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. अभी वो भी हमने कहा कि रिएक्शन रुका नहीं है, इनकी स्पीड चूंकि बराबर हो गई है, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल रहे हैं उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बट इन रियलिटी इट इज हैपनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन which is represented by double arrows. At equilibrium state, amount of concentration of reactants and products do not change. Its molar concentration do not change, like its color also. Even physical properties जैसे इनका color है, इनकी density है, ये भी जो है वो same रहती है. At equilibrium state is attainable from either way. हम equilibrium को disturb करके दोबारा से achieve कर सकते हैं, और इसको equilibrium state reactants से product की तरफ अगर आप जाएं या product से reactants की तरफ जो है वो उसकी quantities को या उसकी balancing check करें, तब भी in either case you can achieve equilibrium.
और इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब अगेन एंड अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि अगर आप कंसंट्रेशन में चेंजेस लाएं, प्रेशर में चेंजेस लाएं, टेम्परेचर में चेंजेस लाएं, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इट कैन बी अचीव्ड अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस अगेन। जैसे अमोनियम क्लोराइड की हमने एग्जाम्पल की बात की थी कि जब हमने 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऐड किया और हमारा प्रोडक्ट बना अमोनिया एंड HCl। पहले बना 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ HCl। अभी भी हमारी जो ये चीज है कि इनकी कंसंट्रेशन जो है, इनका जो स्पीड है वो अभी भी स्लो है, रिवर्स की, फॉरवर्ड की ज्यादा है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है। हमने जो है वो कंसंट्रेशन चेंज कर दी है, इस वजह से अब क्या होगा, अभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि ये भी 2 मोल्स तैयार नहीं हो जाते। जैसे ये 2 मोल्स तैयार हो जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बराबर हो जाएगी और अब हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम अगेन अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट योरसेल्फ 9.1. द क्वेश्चन नंबर 1 says why reversible reactions never complete। हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को इनकम्प्लीट रिएक्शंस क्यों कहते हैं, वो कंप्लीट क्यों नहीं होते? तो ऑब्वियस है, फॉरवर्ड, इन केस ऑफ फॉरवर्ड वी द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स एंड इन केस ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स द प्रोडक्ट्स अगेन चेंज इनटू रिएक्टेंट्स। तो इस तरीके से हमारा जो है वो कोई भी चीज हमें मिलती ही नहीं है और रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे चला गया है। Next we have static equilibrium. So it is on your book. कि static equilibrium क्या है? When reaction cease to proceed, it is called static equilibrium. Example भी उन्होंने दी building की. Third question is why the amount of reactants and products do not change in a reversible reaction. So why doesn't change? It means that on the forward and reverse reaction they are happening at the same speed. क्योंकि स्पीड इनकी ज्यादा है, हमारे जितने इक्वल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन का जो है वो डिफरेंस रहेगा, लेकिन स्पीड सेम होने की वजह से हमारे पास जो है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होती हुई हमें नजर नहीं आती। सो write the answer of question number 1 and 3 on your notebooks. Answer of question number 2 is on your book, page number 4. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.